Today's topic is submodule generated by a subset of module. Let S be a subset of an R module M. Let P be a set of all the submodules of all the submodules of M containing S. Then it is guaranteed that P is not equal to 5 because M itself is a R submodule which contains S. Because P is M contains in P. Okay. Next. Now we define K, which is intersection of all the submodules in P. Or we have already proved that the intersection of all the submodules is a submodule. It means this is a submodule, and here each submodule containing S. So we say that then K is the smallest R submodule containing S is called R submodule generated by S. If S is a finite set x1, x2, x3, xn, then module generated by S is written like that, is also written like that. This is also called finitely generated module. Finitely generated module. An R module M is called a finitely generated modules if M is equal to x1, x2, xk, where xi belongs to n. ये देखो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बना, इसलिए से हम क्या कहेंगे फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल. We have also studied one word cyclic module, the module which are generated by a single element. अब हम एक थ्योरम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम. If R is a ring with unity, so it is given that R module M is generated by a finite set S. Of M. Then we show that M is nothing other than linear set of linear combination of S. And it means R1 A1 Rn A n, where
Ri belongs to ring and Ai belongs to S. ओके, अब हम वन बाय वन इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट LS इज ए मॉड्यूल। फर्स्टली नॉन एम्पटी, जीरो रिंग के अंदर जरूर होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A1, 0 plus A2, 0 plus AN. This means this belongs to LS. So we have proved non-empty. Now we assume A and B belongs to LS such that A is equal to R1A1, R2A2, RNAN, where RI's तो रिंग से हैं और AI's S से हैं। Now come to B. B is defined as S1A1, S2A2, SNA. SI belongs to R and AI belongs to S. What comes A minus B? A minus B वैसे तो इसमें से ये घटेगा, मॉड्यूल के एलिमेंट है, मॉड्यूल के अंदर कम्यूटेटिव अनट्रेडिशन होता है, तो वी कैन राइट दिस एज दिस। ये एलिमेंट भी रिंग से और ये एलिमेंट भी रिंग से और ये एलिमेंट एस से, तो वी से दैट दिस बिलोंग्स टू LS। ओके, तो वी हैव प्रूव दैट LS is a subgroup under addition. Now, last property to prove submodule. Let A belongs to LS as defined here. R belongs to ring. RA can be written as R, R1A1, R2A2, RNAN. मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वी कैन राइट लाइक दैट। ये रिंग का एलिमेंट है, ये भी रिंग का एलिमेंट है, ये भी रिंग का एलिमेंट, तो ये किसके अंदर बिलोंग करके, इसका मतलब, और ये किसके हैं, एस के, तो दिस बिलोंग्स टू LS। दिस शो दैट कि LS इज ए R सब मॉड्यूल। नेक्स्ट, अब हमें प्रूव करना है कि ये भी एक सब मॉड्यूल है और ये भी एक सब मॉड्यूल, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि बोथ आर सेम। सिंस M is a R module so that AI belongs to S, और 1 belongs to ring implies that 1 into AI equal to AI for all I. This means AI is linear combination. So it means AI belongs to LS. The whole things provide us S is a subset of LS. S is a subset of LS. Okay. So LS is one of the submodule containing S. LS is the one of the submodule containing S. Let W be any other submodule of M containing S. Okay. W is another submodule containing S. Since W is closed under addition and scalar multiplication, so LS is subset of W.
तो दिस implies that कि LS is the smallest sub module containing S. So LS is equal to this. ओके, तो क्या प्रूव कर दिया? एंड वी हैव ऑलरेडी शोन इन स्टेटमेंट कि S is a sub module with generate M. So this is equal to M. Now we are coming to the next point. Next theorem. Homomorphism of set of all the module homomorphism from R module R to R is isomorphic to R. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। पहले तो हमें ये पता है कि R is a ring with unity, is a R submodule. Ring over ring is a R submodule. ओके, नाउ हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक डिफाइन करना है, तो हमें इसके बीच में मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। F रिंग से कहां तक? इस सेट तक। कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी? इधर से एलिमेंट आए A और वो इसका एलिमेंट बन जाए A स्टार। बच्चों ये A स्टार एक मैपिंग टाइप का एलिमेंट है। कैसा है कि A स्टार के अंदर यदि हम X रखते हैं तो वो अपने आप को AX बना ले फॉर ऑल X बिलोंग्स टू रिंग। ये हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करी है, कहां से कहां तक? R से R तक। इस टाइप, इसके अंदर ये जो सारे एलिमेंट है इसमें इस टाइप के होते हैं। इसको आप क्या प्रूव करोगे? सबसे पहले आप देखो, मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं, A स्टार XY क्या होगा? ये स्टार XY लेते तो क्या आएगा? हमारे हिसाब से AX प्लस Y आएगा, दैट बिकम्स टू AX प्लस AY एंड इट कैन बी रिटन एज दिस। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। ये XR। अब हम इस क्वेश्चन की जो डीलिंग है वो राइट आर मॉड्यूल की तरह कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। देखो इस पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर हम राइट आर मॉड्यूल की तरफ से इसको डील करना चाह रहे हैं। A स्टार क्या लिखा है मैंने? XR। A स्टार XR अपने आप के लिखेगा AXR, एसोसिएटिव लगाओगे AXR। ये एलिमेंट क्या बना आपका? A स्टार X और R राइट में। तो इस प्रकार आप ये प्रूव कर दोगे कि A स्टार एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। ओके, अब हमें इस ये जो मैपिंग डिफाइन करी थी हमने R से यहां तक, आइसोमॉर्फिक के लिए आपको क्या प्रूव करना है जी? 1 on 2 एंड ऑपरेशन प्रिजर्व। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन प्रिजर्व की बात करते हैं। कैसे करें ऑपरेशन प्रिजर्व? F ऑफ A प्लस B क्या बनेगा? A प्लस B के ऊपर स्टार आएगा। अब हम A प्लस B स्टार X की बात करते हैं। ये क्या आएगा जी? ABX आएगा। It can be written as AX plus BX. Now it can be written as A star X plus B star X. It can be written as now like that for all X belongs to ring. इसका मतलब ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी और इसको यहां रखोगे
रखते ही हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होने की तरफ, पार्ट कंप्लीट होने की तरफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, मैं बताता हूं। इसको हम प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक बात ध्यान रखना, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो आपने ये प्रूव करनी है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ना कि मॉड्यूल वाली। कैसे प्रूव करोगे, आपने कर रखी है सिमिलरली, जैसे ये करिए वैसे ये कर लो, कोई दिक्कत। नाउ 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 कैसे करते हैं देखिए, हमने लिया f of a equal to f of b. This implies that a star is equal to b star. A star x is equal to b star x for all x belongs to real. Ax is equal to bx. Ax minus bx is equal to 0 for all x belongs to real. Take x is equal to 1. 1 means unity. Its answer is a minus b, but this answer is 0. So this implies that a equal to b. And we have shown 1 1. Now on to how we can prove on to. Simple wordings we have to consume. T is a homomorphism from this set. We know that कि इसकी होमोमॉर्फिज्म को निकालने के लिए हमें T of 1 से पता लगता है कि होमोमॉर्फिज्म जहां जाएगी, मैंने मान लिया कि ये A में जाती है, यूनिटी जहां जाएगी, तो T इस मैपिंग का नाम क्या रखेंगे हम, T का मैपिंग का नाम बनेगा A से। ये हम प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू शो। ओके, Tx क्या बनेगा, T1x। दिस इज T1, ये क्या लगा दिया हमने, दोबारा ध्यान से देखें ये क्या लगाया है, दिस इज नथिंग देन, मैंने अभी बताया था ना आपको कि ये जो है राइट मॉड्यूल की तरह काम करेगा। तो ये x बाहर आ गया है, T1x। ओके, दिस इज नथिंग बट ax। नाउ इट कैन बी रिटन एज a star x। तो दिस T इज नथिंग बट a star, जो हम क्लेम चाहते थे। इसका मतलब f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो वी हैव प्रूव दैट कि होमोमॉर्फ आर जो कि क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू ए रिंग आर। सिमिलरली वर्ड्स पर आप ये भी प्रूव कर सकते हो, यहां पर जेड है क्यों, ये भट्टाचार्य एंड जैन की बुक 260 पेज पे थर्ड क्वेश्चन है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द साइक्लिक मॉड्यूल डेफिनेशन विद यू। नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लिक मॉड्यूल और सिंपल मॉड्यूल के आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे।